ओके ठीक है. ठीक है. So let me search the. I'm sharing my screen. हाँ ओके. Can you see my screen? हाँ yes, it is visible now. Hmm. Okay. So see, this is a role change. Mona, sorry, actually my system was got disconnected because of update. It was updating and got restarted automatically. Mhm. Okay. Yeah. Please, now you can start. ठीक है. Just a minute. Yeah, sure. ठीक है. पहले मैं एक फायर फाइटर दिखाती हूँ. टेम्पररी फायर फाइटर. Okay. Okay, there are two type of firefighter ID, right? One is permanent firefighter, which Yes. starts with A. Mm-hmm. I mean, for in your region, it will be AEE star. E stands for Eastern Europe or something like that. For AMIA, it will be AAP. AP stands for APAC. And for Nala region, it will be AAM. AM stands for America. Okay. Okay. ठीक है? Okay. So AE. So AE star. Okay. Are you sharing your screen now? No. I'm not Okay. sharing Okay. my screen. Okay. Okay. मैं पहले बोल देती हूँ. Okay. Okay. ठीक है? ठीक. This is the naming convention for permanent firefighter ID Mm-hmm. in system, and similarly for temporary firefighter ID, it will be ACE star, SAP star, and SAM star. Okay. Okay. ठीक है? Temporary starts with S. Okay. एक मिनट. क्या होता है और E star डिफरेंस क्या है? Yes. Yes. ठीक है? Uh-huh. तो now मैं most of the cases ये आता है. तुम्हारा टेम्पररी फायर फाइटर आईडी आता है. ठीक है? परमानेंट फायर फाइटर आईडी कम ही आता है. तो आई एम शोइंग यू एन एग्जांपल. कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes. Yes. I can. तुम्हारा सर्विस नो एक्सेस अभी आएगा नहीं. मेरा कल बात हुआ लियोन से. तो देयर इज नो बैकअप अप्रूवर. Okay. Okay. So he will be back on 7th. So once he is back, then only you will get your access. अच्छा. Okay. So अभी लगभग 3-4 दिन kind of. अभी कुछ कर तो नहीं सकते. ठीक है? तो see, so for the temporary firefighter ID, you will get a request like this. Who requested that firefighter ID production system will be there. SCP, KPA, whatever any systems they are requesting, they will put the system there. Temporary firefighter ID. और permanent होता है तो यहाँ पे permanent दे देगा. ठीक है? ठीक है. Process team, APO. Process team मतलब APO है, finance है, OTC, referent functional area. Transaction code is required SCL and अच्छा इसको assign होगा. ठीक है? firefighter ID. This is a firefighter user. User. Okay. And this is the program required. Start date will be this. I mean start date जो भी हो, जब से assign करोगे तब से 5 days. Okay. ठीक है. 23rd तो मतलब जो डेट देंगे वो तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज अप्रूवल आने में 2-3 दिन टाइम लग जाएगा. हाँ हाँ बिल्कुल. ठीक है? So when you get any firefighter request, what you have to do, you have to get the requirement in this format. Okay. ठीक है? This is the format we are following. Okay. That
functional team has to provide this information in this template. ठीक है. और ये जो पार्ट है बिजनेस जस्टिफिकेशन, इसमें I mean all the fields should be filled. Okay. अगर कंट्रीज इम्पैक्टेड पता नहीं होगा तो MUIC होगा या MEIC होगा, पता नहीं चलेगा हम लोग को. Correct. ठीक है. कंट्री कोड के हिसाब से तुमको पता चलेगा ना. इफ इट इज AMIA region, it will be sending it to AMIC. If it will be MU region, then it will be sent to MUIC. Correct. सिस्टम ID, T कोड रिक्वेस्टेड, उसके साथ प्रोग्राम टेबल जो भी है, whatever details they can provide, okay. They have to share they have to provide the details. If any debug access is required, debug display you can assign, but for debug change, that is a critical one access, वो हम लोग maximum 1 to 2 days दे सकते हैं. Okay. ठीक है. उससे ज़्यादा debug change access नहीं दे सकते. ठीक है. Okay. और debug change अगर लगता है तो ये सब reason you have to get that validated. Okay. The reason for debug access, if it is going to affect business data, और जो भी है इसमें duration, everything. So I will suggest not to assign any firefighter access for more than 10 days, maximum of 10 days. Okay. Okay. तो ठीक है, ये तुम्हें blank भेजना होगा. Then they will come back with the data. Okay. देखो ये ही रिक्वेस्टर है ना. So he has provided the details. Impacted global means AMIA का भी लगेगा, MU का भी लगेगा. Correct. ठीक है. CP KPA. Okay. Debug change access is not required. Okay. Duration 5 days. So अगर 5 days होता है तो बिजनेस डेज, मोर देन 5 days होता है तो कैलेंडर डेज. ओके, ठीक है. मोना एक चीज़, जैसे यहाँ पे उन्होंने डाला ग्लोबल, तो जैसे जो हमारा SID होगा, सिस्टम ID, तो उसमें ही हमें एक्सेस देना है, बट ग्लोबल में दोनों तरफ से अप्रूवल लेना होगा मुझे, EMEA और MU से. करेक्ट ना? करेक्ट. MUIC MEIC. हाँ करेक्ट. ओके. अगर कुछ यूरोपियन कंट्री देता तो MUIC का लगता, अगर कुछ मिडिल ईस्ट कंट्री देता तो MEIC का लगेगा. ओके. मैंने कंट्री कोड शेयर किया है ना, वो वाला लिस्ट रेफर करना. ओके, ठीक है. ठीक है. 5 बिजनेस डेज मतलब अगर आज से आप स्टार्ट करते हो, देन 1 2 3 4 5 अप टू 7. ओके. ठीक है. 4 5 will not be considered because it will come under calendar days. ओके. अगर कोई 10 दिन के लिए रिक्वेस्ट करता है, then you have to consider calendar days as well. ओके, ठीक है. ठीक है. 5 days means today plus 4. Today 1 2 3 4. Okay. FFID controller name, you will get the controller name. अच्छा, ये APO का है राइट. तो APO का नेमिंग ऐसा है, SEE APO. तो तुम इसमें जाना, GRC में जाना, GGP सिस्टम, AC16, GRAC कंट्रोलर, ये टेबल नोट कर लो. ठीक है. ठीक है. यहाँ से कंट्रोलर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. APO का साक्षी है. ठीक है. हम लोग को पता है बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर क्वाइट सम टाइम. ठीक है. ऐसे सर्च करना है. Controller is this one, BDC 9776. You can go to service now. You can check Sakshi. Yes, correct. ठीक है. और अप्रूवल प्रोसेस कहाँ से पता चलेगा? यहाँ पे पता चलेगा. ये जो प्रोसेस वर्कफ्लो है, यहाँ पे अगर तुम टेम्पररी फायरफाइटर इसमें देखोगे विथ MU. ठीक है. MU देखोगे, देन
firefighter controller IC and security lead का approval लगता है. This is fixed. ओके Controller on mail, IC on mail, security lead on mail. ठीक है. ठीक है. तो when you get this information, just validate that कि इन लोगों ने सब सही से डाला है कि नहीं. And this information we need to put. ठीक है. 13, 14, 15. कंट्रोलर नेम तुम्हें पता चल जाएगा GRC टेबल से. ओके फायरफाइटर नेम पता चल जाएगा because it's from APO, तो SEE APO होगा. And यहाँ पे start दिया हुआ है because I mean if the ID is occupied then we have to check for other ID. There are 5 series, okay? करेक्ट. 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो देखना कौन सा एक्टिव है, उस बेसिस पे दे देना. ओके And this is the role that we are going to assign, temporary role for 5 days. ओके. और इन तो जब असाइन करोगे इसी रोल में मुझे सारा वो करना है चेंजेस. ट्रांजैक्शन कोड देना है. ओके ठीक है. तो रोल वैलिडिटी भी 5 दिन के लिए होगा. आई मीन इफ द फायरफाइटर इज अप्रूव्ड फॉर 5 days, रोल वैलिडिटी 5 दिन के लिए होगा. अकाउंट वैलिडिटी भी 5 दिन के लिए होगा. ओके ठीक है. ठीक है. मतलब SU01 में लॉग ऑन डाटा में जो देखते हो. हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो श्रीकांत ने भेजा है साक्षी को. ठीक है. श्रीकांत ने साक्षी को भेजा है. तो साक्षी जब आएगी तो अप्रूव करेगी. अगर अप्रूव होता है तो सेम ईमेल MUIC MEIC को जाएगा. वंस दे अप्रूव सेम ईमेल लियोन को जाएगा. लियोन इज अ सिक्योरिटी लीड फॉर MU रीजन. ओके यहाँ से पता चल जाएगा कौन सपोर्ट लीड है MU नाला का. If I open the MU, Leon is the support lead, okay? Yes, And Dinesh is the project lead. ओके Leon नहीं होता है तो we reach out to Dinesh. ओके ठीक है. और तो once that is approved, then get it reviewed by someone. Once you receive all the approvals, ठीक है, that is a pre-review. And once the pre-review is done, उसमें पता चल जाएगा कि तुमने सब अप्रूवल लिया है कि नहीं. If anything is missed, then you have to take the approval. And once the pre-review is done, you can make the changes in system. System में क्या करना है? पहले तो ये वाला रोल क्रिएट करना है. रोल का नाम क्या होता है? वाई टेम्प एंड टिकट नंबर. ओके ठीक है. वाई टेम्प टिकट नंबर ये कहाँ पे क्रिएट करना है? KP एंड ACP में जाके. ओके Those are the production system. ओके So once you create the role, इसमें क्या ही है, सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है ना. SCAL करके कुछ SCL. हाँ हाँ एक ट्रांजैक्शन ऐड हाँ. करना है खाली. हाँ. इसमें ऐड करके ऑथराइजेशन मेंटेन कर देना. क्रिटिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इफ यू आर नॉट श्योर मुझे पूछ सकते हो व्हाट टू मेंटेन इन द क्रिटिकल ऑब्जेक्ट. बट अगर नहीं भी श्योर होते हो तो वो डीएक्टिवेट कर देना इफ आई एम नॉट अवेलेबल और इफ एनीवन फ्रॉम द टीम इज नॉट अवेलेबल. ओके ठीक है. क्रिटिकल में से होता है इज डेवलप. दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल. ओके यूज्ड टू प्रोवाइड डीबग एक्सेस. ओके. तो ये डीबग मुझे एक्सेस में ये चेंज एक्सेस है डीबग एक्स हाँ. Okay. नहीं, डीबग डिस्प्ले होता है, डीबग चेंज होता है. डिस्प्ले यू कैन प्रोवाइड. ओके डिस्प्ले में तो कोई रिस्क नहीं है ना. बट बिल्कुल. अगर चेंज एंड डीबग ये कॉम्बिनेशन किसी को मत देना. ठीक है. ठीक है 03 is fine. 03 से कुछ प्रॉब्लम नहीं है. हाँ. और जब प्रोग्राम एक्सेस देते हो आइडियली एस डेवलप कहाँ से आता है? जब AC38 और AC38 इफ दे रिक्वेस्ट प्रोग्राम पे जाके ही ना डिबग करेंगे. हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल. उसमें प्रोग्राम नेम स्पेसिफाई होना चाहिए. ओके. वो तो रिक्वायरमेंट ठीक के है. साथ अपना प्रोग्राम नेम भेजेंगे ही ना स्पेसिफिकेशन में. भेजना चाहिए बट ये लोग भेजते नहीं. तो हमें पूछना देखो पड़ता ना है. यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल प्रोग्राम LSMW प्रोजेक्ट ये सब देना होगा. करेक्ट. अगर SM30 दे रहे हो. अच्छा पहले मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ. अगर AC38 देते हो तो इसमें ये वाला ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है. ओके. If debug access is not required then you can deactivate that.
एंड इफ debug change access is required, ठीक है, तो उस केस में पहले तो तुमको पूरा बिजनेस जस्टिफिकेशन लेना है क्यों चाहिए, एंड देन बेस्ड ऑन द बिजनेस जस्टिफिकेशन वी हैव टू रीच आउट द सपोर्ट लीड टू गेट दैट वैलिडेटेड दैट debug access सच में चाहिए या नहीं, बिकॉज वी आर नॉट द करेक्ट पर्सन टू वैलिडेट ना, बिकॉज हम लोगों को फंक्शनलिटी कैसे पता होगा, तो वो फंक्शनल टीम वाले बताएंगे ना। हाँ, जस्टिफिकेशन वो लोग देंगे, देन यू हैव टू रीच आउट टू फॉर एपीओ केस यू हैव टू रीच आउट टू साक्षी अगेन, बिकॉज साक्षी सपोर्ट लीड भी है एपीओ का। ओके, ठीक है। That this is the thing, so please confirm that if it is okay to proceed with debug change access. ओके और देना भी है तो मैक्सिमम 1 to 2 days। ओके, ठीक है। ठीक है, फंक्शन टीम तुमको बोलेंगे कि 10 दिन के लिए चाहिए, 15 दिन के लिए चाहिए, which is not possible because it is a sensitive access। करेक्ट। तो अच्छा, ठीक है, और डीबग देते हैं अगर हम, तो उसके बाद हमें कुछ एक्सट्रैक्ट भी करना होगा क्या, लाइक उनका लॉग वगैरह? नहीं, फायर फाइटर में तो लॉग जनरेट होके कंट्रोलर के पास चला जाएगा। ठीक है, हाँ, करेक्ट। ठीक है, फायर फाइटर में कुछ करना नहीं पड़ेगा, ओएसएस में करना पड़ेगा। हाँ। और अमन, एक चीज़, जैसे ये टेम्प्रोरी रोल्स जो बनता है, जैसे लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमें बनाना पड़ता है, तो इन रोल्स का होता क्या है आफ्टर, लाइक जब रोल का यूज़ खत्म हो गया, वो एक्सपायर हो गया, फिर क्या होता है उन रोल्स का? तो एक बैच आईडी है EU बैच करके, वो रिमूव कर देगा वंस द आईडी इज एक्सपायर्ड। तो वो सिस्टम से रिमूव वंस द वैलिडिटी इज एक्सपायर्ड, हाँ, वो सिस्टम से ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। मतलब पीएफसीजी में वो रोल दोबारा मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ? पीएफसीजी में मिलेगा बट यूजर से निकल जाएगा। तो मींस अगर हम लोग हर दिन असाइन कर रहे हैं तो देयर विल बी लाइक लॉट ऑफ रोल्स विल बी देयर, करेक्ट? टेम्पोररी रोल्स। हाँ, वो तो यहाँ का डिजाइन है, दैट यू कैन नॉट चेंज। ओके, हाँ, इन लोगों का डिजाइन ही ऐसा है। अच्छा। ये तो देयर आर मेनी वाइट टेम्प रोल इज देयर। ओके, ठीक है, बिकॉज हर एक टिकट के लिए एक रोल क्रिएट होता है, तो हाँ, वही देयर आर मेनी। हाँ, मेरा वही कंसर्न था, क्योंकि इतने सारे रोल्स को मैनेज करना, फिर मुझे लगा कि टेम्पोररी रोल्स इनका तो कोई यूज़ है नहीं बाद में। बट वो फिर से यूज नहीं होगा बिकॉज टिकट क्लोज हो गया, तो वो रोल का काम भी खत्म। एग्जैक्टली, वही। तो दैट इज व्हाई देयर आर मेनी क्लीन अप एक्टिविटीज गोइंग ऑन ना। करेक्ट। तो फायर फाइटर का प्रोसेस तुम समझ गए, राइट, फॉर टेम्पररी फायर फाइटर। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, नाउ मिनट, एक मेल था मेरे पास, जस्ट अ मिनट। मैंने बोला ना कि जब डीबग चेंज एक्सेस असाइन होगा, एक्चुअली 2-3 महीने पहले डीबग चेंज एक्सेस किसी ने गलती से असाइन कर दिया था, तो वो ऑडिट में आया था। अच्छा। तो आफ्टर दैट वी हैव टू लाइक वेरी केयरफुल व्हेन वी आर असाइनिंग डीबग चेंज एक्सेस। तो दैट इज व्हाई वो लास्ट स्टेप मैंने बोला ना कि फंक्शनल लीड से वैलिडेट होगा whether it is required or not। ठीक है, तो ये टेम्पलेट है, तुम ये फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वैलिडेट if it is required or not। ओके। ठीक है, तो is develop is a critical object। now when you are assigning AC16 यहाँ पे यूज नहीं होता, यहाँ पे ऑलवेज यूज होता है ZAC16। ओके, ठीक है, AC16 यहाँ पे कोई सिस्टम में यूज नहीं होता, सिर्फ FPP और GGP में होता है, बाकी सब सिस्टम में जाके ZAC16 मिलेगा। तो कभी किसी को AC16 एक्सेस असाइन मत करना। ठीक है, ZAC16 is fine। and if you are going to assign any ZAC16 access in OSS ID or in firefighter ID, then make sure you have the table name। ओके, वाइड एक्सेस नहीं देना है, स्टार नहीं देना है। ओके, ठीक है। ठीक है, कमिंग टू SM30। इस SM30 जब असाइन करते हो तब वहां से भी इस टैबू नाम कॉल होता है। तो whenever any जब firefighter रिक्वेस्ट में ऐसा आता है कि SM30 access is required but they have not specified any table name। Okay, so ask them to provide table name। SM30 used for maintain some table data, right, call view maintenance, ऐसा कुछ होता है, तो वो नहीं देना है।
ओके, लाइक अगर वहाँ पे अगर प्रोग्राम टेबल नेम स्पेसिफाई करके दे रहे हैं तो फिर जो भी अप्रूवल इट इज फाइन। हाँ हाँ अप्रूवल हाँ वगैरह लेके वो हम असाइन कर सकते हैं स्पेसिफिक टेबल, वाइड एक्सेस नहीं हाँ देना हाँ, स्पेसिफिक कर सकते हो। है। ओके एंड वट एवर इज अप्रूव्ड असाइन दैट ओनली। ओके ठीक ओके है। और क्या है, और एक क्रिटिकल ऑब्जेक्ट है इसका एस आरजेडएल एडीएम ऐसा करके कुछ है। ठीक है, ये भी बिस इस RZL एडीएम ऐसा करके कुछ है। दिस इज ऑल्सो क्रिटिकल ऑब्जेक्ट। ये क्या कुछ एडमिन एक्सेस है क्या? एडमिन टाइप का है। ओके बेसिस का जो भी है एडमिन टाइप का। अच्छा, इसमें ठीक इनमें है। ऐसा कुछ नहीं है क्या, क्रिटिकल एक्सेस को एक तरफ नहीं रखा गया, ऑब्जेक्ट जो भी क्रिटिकल है उसके लिए कोई टेबल रन करके या फिर चेक नहीं कर सकते हैं जो क्रिटिकल है? नहीं, वो कैसे चेक करोगे, वो तो एक्सपीरियंस के साथ आएगा ना। हाँ व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग यू हाँ विल गेट द हाँ करेक्ट एक्सपीरियंस। करेक्ट तो ठीक है, ये सब तो मतलब बार बार आता है। दैट इज व्हाई आई हैव नोटेड दैट एंड इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। करेक्ट और भी कुछ अगर होता है, आई मीन एंडिंग विथ ईडीएम टाइप का, वो एक्सेस पहले मेरे से पूछ लेना। हाँ इट इज ओके टू असाइन और नॉट। ओके ठीक है, हाँ हाँ ये हो गया तुम्हारा टेम्पररी फायर फाइटर आईडी। और वंस यू आर डन विद द असाइनमेंट, पहले तो फायर फाइटर आईडी में असाइन करोगे, राइट? हाँ हाँ ये जो आईडी दिया हुआ है इसे भी मैं असाइन करोगे। देन यू विल मैप द आईडी टू द यूजर करेक्ट in GRC. हाँ हाँ Do you know the steps how to map? यस 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 आई नो So this is the user ID, access requested for. इसको जो भी ID तुम दे रहे हो वो मैप कर देना। ठीक है ठीक है, once it is done, then किसी को बोल के post review करवाना। If I am available, fine. If I am not available, then ask Lokesh और कार्तिक। ओके ठीक है, पोस्ट तो रिव्यू के लिए once मीन्स मैनुअली मुझे मैसेज करना है या फिर वो असाइन करना होगा टिकट? नहीं ऐसा ही नहीं, तुम जस्ट पे टीम्स पे पूछ सकते हो। ओके ओके ठीक है For review, you can reach out to anyone in Teams. Okay? तो review comment भी हम लोग डालेंगे that it is reviewed or not. Then only you can close the ticket. तो वो ना एक चीज़ लाइक अगर मैं टीम्स पे पूछता हूँ रिव्यू के लिए, प्री रिव्यू पोस्ट रिव्यू, तो टिकट में तो ये चीज़ विजिबल नहीं होगा ना कि मैंने रिव्यू लिया था या नहीं? तो जो भी रिव्यू करेगा वो तो यहाँ पे कमेंट डालेगा ना। अच्छा अच्छा ओके, कमेंट का ऑप्शन है यहाँ पे, ओके समझ गया मैं। सी यहाँ पे माधुरी ने मुझे रिव्यू करने के लिए भेजा था। ठीक है, रोल चेंज रिक्वेस्ट। हाँ ठीक है तो मैंने रिव्यू किया एंड टू एंड। And I have put my comment pre-review done. ओके ओके ठीक है, ठीक है यहाँ पे उसने कुछ अप्रूवल मिस किया तो मैंने बोला यहाँ पे यूएटी नहीं है। ओके ड्यूरिंग रिव्यू it has been caught that she has not taken the UAT approval. ओके तो मैंने प्री रिव्यू कमेंट नहीं डाला। हाँ 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 once she is back with the UAT confirmation, अप्रूवल सब सही है बट यूज़र रिव्यू का यूजर का UAT कंफर्मेशन नहीं है। तो रोल चेंज तो विदाउट UAT मैं भेज नहीं सकती, राइट? करेक्ट नहीं है तो मैंने नहीं डाला। once she is back with the confirmation then only I will put that. ओके 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 समझ गया मीन्स आपको 1 by 1 सारा प्रोसेस देखना है कि व्हाट सी फॉलोड और क्या चीज़ नहीं है वो बताना है, अगर है तो फिर उसको रिव्यू डन करके कर देना है बस। हाँ, इफ एवरीथिंग इज फाइन, सपोज फॉर द फायर फाइटर, अगर तुम ये 3 अप्रूवल लेके मेरे पास आते हो कि कंट्रोलर आईसी एंड लियोन, आई मीन एमयू आईसी, एमयू सिक्योरिटी लीड, देन इट इज फाइन, आई विल पुट माय कमेंट। और अगर ग्लोबल में से मुझे दिखा कि सपोज तुमने सिर्फ एमयू का लिया है, आमिया का नहीं लिया है, देन आई विल आस्क यू अगेन टू टेक द अप्रूवल। ओके ओके इट्स अ रिव्यू प्रोसेस बिकॉज कुछ केसेस में मिस हो जाता है अप्रूवल। हाँ बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ये हो गया परमानेंट फायर फाइटर। मैं तुम्हें ये सब यही बोल रही हूँ दैट व्हेन यू हैव द एक्सेस फ्रॉम 7 you can start working on the firefighter ID और production access request directly. बिल्कुल ठीक
ठीक है. आइडियली मतलब जब स्टार्ट करते तो मैं नॉन प्रोडक्ट देती हूँ सबको जस्ट टू गेट यूज्ड विद द सिस्टम. बट सिंस फॉर यू वी हैव ऑलरेडी वेस्टेड दिस टाइम ना. करेक्ट. नॉट बिकॉज ऑफ यू बट आई मीन क्रिसमस हॉलीडे के लिए हो गया है. तो आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम. तो जब तुम एक्सेस मिलेगा 7th को सेटअप द डैशबोर्ड. वो मैंने तुम्हें दिखाया था क्या हाउ टू सेटअप डैशबोर्ड? इसका स्नो का क्या? नहीं, आपने नहीं दिखाया था. ठीक है, मैं दिखा देती हूँ. वो डैशबोर्ड सेट कर लेना एंड then you can see the tickets assigned to you. Okay. And you can start working on that directly on the production request. Okay. So once you log into ServiceNow, ठीक है. ठीक है, तो ये डैशबोर्ड ऐड कर लेना. ग्लोबल डैशबोर्ड, नॉन SAP SAP डैशबोर्ड. ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. यहाँ पे you will get to see that how many tickets are assigned to Accenture. Okay. तो आमिया रीजन का you can see it's 40, MU का 144, नाला का 60, 68 plus 80. And Russia is not in our scope. Okay. ठीक है. This will show yesterday's inflow, yesterday closure. कल MU में 17 आया था, close हुआ था 10. Okay. Similarly for AMIA. So everything is getting tracked. ठीक है. और किसने कितना क्लोज किया है वो भी पता चल जाएगा यहाँ से. Now how many role changes ticket is there? Quick fix मतलब वही user lock unlock ऐसा टाइप का ticket. How many close quick fix ticket currently MU has? I have the number. How many aging ticket? इसमें सब details रहेगा. Okay. और ये जो global tickets है not updated for 5 days. We have to keep the count as low as possible. 22 अभी है, but ideally the count should be between 0 to 5. Okay. ठीक है. अभी तो टीम मेंबर सब छुट्टी में है, that is why it is a bit high. But when you start working, your primary thing will be when you log in, you have to check the dashboard and update the aging tickets first. Okay. Yeah. CR means the row changes request, which is ready to move, only one. And 15 days, tickets कितने सारे हैं, so you can check it from the dashboard. Okay. ठीक है. तो तुम अपना टिकट कैसे चेक करोगे? When you log into there, just open the 144 ticket, right? यहाँ पे तुम्हारा नाम आएगा, अभी तो नहीं है. ठीक है. सपोज मैं मेरा वाला ही देखती हूँ. मेरे पास इतने सारे टिकट्स है. तो you can create your favorite or anything you want can do. You can do to save this. मैंने सेव करके रखा है फिल्टर में my tickets. Okay. ठीक है. बट आइडियली अगर तुम सेव नहीं करते हो तो you have to go to the path and check your tickets. Okay. ठीक है मोना. ठीक है. और वहाँ से मिल जाएगा how many incident tickets and how many catalog task is assigned to you. You will get the count. Okay. ठीक है. और और एक डैशबोर्ड है, दिस वन, नॉट अपडेटेड क्विक फिक्स नियर इसलिए ये भी सेव कर लेना. Okay. यहाँ पे you can see the tickets with no tag. So I think someone has already described you, right, that before closing the ticket we have to update the tag. हाँ correct. टैग का लिस्ट तो दिया होगा. हाँ मेरे पास है. हाँ. तो देखो अभी तो 126 टिकट्स का टैग अपडेटेड नहीं है, but we have to update the tag because at every month end we are tracking this, and if it is not updated then Vijay will reach out to you and will ask you to update the tag. Okay. So I don't want like MU में किसी का ये without मतलब अपडेट नहीं हुआ है, तो make sure कि updated हो. वो before closing the ticket ना?
before closing the ticket, or when you get the ticket and you know that it's a temporary access request or it is a user unlock ticket, you can tag it. ओके, करेक्ट. ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे बहुत सारे हैं म्यू का. एनीवेज, एंड और एक चीज पता चलता है यहाँ से, तो ये सब चीज एक्सप्लोर कर सकते हो. नॉट अपडेटेड फॉर 3 days. ये वाला देख लेना, ग्लोबल सिक्योरिटी नियरिंग SLA. सो दिस टिकट्स आर द इंसिडेंट टिकट, जहाँ पे SLA कब तक ब्रीच होगा इसका काउंट दिया हुआ होता है. ओके. सो अंकिता के पास अभी एक टिकट है जो ब्रीच होगा 16 hour 30 minutes, बट ऑन होल्ड पे है तो ब्रीच अभी नहीं होगा. But those tickets which are in progress, you have to either put it on hold or you have to close that. हाँ, करेक्ट. ठीक है. ठीक है, तो ये दो सेव कर लेना. फिक्स इन ग्लोबल डैशबोर्ड, SAP and SAP. ओके. ठीक है. नाउ कमिंग टू द रोल चेंज टिकट जो मैंने बोला था ना. ओके. ओनली सिक्योरिटी टीम कैन हैव दैट. यस. और अच्छा, नाउ कमिंग टू ठीक है. सो दिस इज अ रोल चेंज रिक्वेस्ट. सो पहले देखना है कि यूजर कौन सा कंट्री से बिलोंग करता है. इट्स बेल्जियम, सो इट्स इन आवर स्कोप. अब देखना है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट हियर. अगर यूजर ये वाला रिक्वायरमेंट नहीं देता तो यू हैव टू आस्क द यूजर टू provide the details. Okay. यहाँ पे देखो, सिस्टम नेम दिस वन, यूजर दिस वन, बिजनेस SU53 स्क्रीनशॉट तो अटैच नहीं किया, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इसने बोला कि मुझे FB-V0 का एक्सेस चाहिए. दिस इज द बिजनेस जस्टिफिकेशन. और प्लांट भी दे देना चाहिए था, बट इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया B3 कंपनी कोड का चाहिए. ओके. अगर नहीं मेंशन करता है देन यू हैव टू आस्क. ओके. और मैं तुम्हें ये वाला भेज देती हूँ सो दैट यू कैन हैव द टेम्पलेट फायर फाइटर का. ओके. ठीक है. हाँ, तो ठीक है. तो पहले देखना है यूजर के पास कौन सा जॉब रोल असाइन है, वेदर इट इज अ इंटरनल जॉब रोल और MBS जॉब रोल. इसमें 2 टैब है ना, एक लोकल का एक ग्लोबल का है SAP में. ये वाला यूज नहीं करना है, ये वाला. लोकल करके एक था. लोकल तो ऊपर रहता है ना, लोकल. ठीक है, चेक कर लेना. हाँ. इफ यू कैन लॉग इन टू. हाँ, yesterday I was searching in or that not. only. और यहाँ पे तो चिपिता सिस्टम्स आते हैं लीगेसी में. ओके. लीगेसी में CSP CBP. ओके. GRP था पहले, वो डिकमीशन हो गया है. ठीक
ठीक है, शिपिता के लिए कोई सेपरेट ऐसा नहीं है ग्लोबल एम या एमयू, ये लीगेसी में आता है. ओके ओके और दिस इज द ये नहीं, ठीक है. कमिंग टू केपीए. तो इसका देखो टी रोल्स है, राइट? सो बिजनेस है, बिजनेस यूजर, आई मीन इंटरनल जॉब रोल. अगर इफ होता तो एमबीएस होता. सेग्रीगेशन मैंने बोला था ना, if the single role starts with T then it is internal job role, and if it starts with F then it's a MBS job. और MBS में यहाँ पे एम होता, इंटरनल की जगह एम होता. तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप है यू हैव टू सेंड इट टू यूएटी फर्स्ट. यूएटी आर या क्यू में होगा. आर डी में तो नहीं होगा, ऑब्वियसली डी इज अ डेवलपमेंट सिस्टम, आर इज अ टेस्ट सिस्टम, क्यू इज ऑल्सो टेस्ट सिस्टम. ओके ठीक है. तो पहले तुम्हें सर्च करना होगा कि कौन सा डीटी हम लोग असाइन कर सकते हैं टू विद द एक्सेस. ठीक है, तो मैं सर्च कैसे करूंगी? फर्स्ट गो टू स्विम, I have to search for master roles. If V0. आ गया ये. तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा रोल में मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है. जब भी रोल असाइन करोगे तो इट इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो यूजर को मिनिमम ट्रांजैक्शन वाला रोल असाइन होता है. बिल्कुल. ठीक है, जस्ट टू अवॉइड द रिस्क एंड ऑल. करेक्ट. तो यहाँ पे और एक कैच है, वो है ये एमयू का रोल है, राइट? तो एमयू का रोल में एमयू का अगर जॉब रोल होता है वहां पे यू हैव टू ऐड द डीटी व्हेन द डिस्क्रिप्शन स्टार्ट विथ एफएफ एमएम एसडी लाइक दैट. ठीक है, अगर एमयू जेआईडी हुआ तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीटी विल स्टार्ट विथ एफआई एमएम एसडी और क्या होता है, और ये तीन ही तो है फंक्शनल अभी. ठीक है, अगर यू आर असाइनिंग एमिया डीटी इन एमिया जेआईडी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन विल स्टार्ट विथ आरटीआर ओटीसी एमटीआई. आरटीआर कौन सा है? आरटीआर एफआई का है. ओके. ठीक है, एंड सिमिलरली एमईआईजीआईडी में एमयू डीटी असाइन मत कर देना. ठीक है, तो यू आर गेटिंग ना कि एमयू कैसे आई मीन आइडेंटिफाई करोगे. द ओनली ऑप्शन इज टू चेक द कंट्री कोड जो भी यहाँ पे मेंटेन होगा, टी हाइफन ये वाला एक सेक्स जो है ना बिफोर एफआई वही आइडेंटिफाई करेगा. इफ इट इज ईजी then it is EMEA. EG comes under Egypt. Correct. ठीक है, तो यहाँ पे RTR वाला मैं you have to you cannot take RTR वाला because RTR comes under EMEA. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये FI वाला रोल ही देखना पड़ेगा. तो FI में तुम ये सब नहीं दे सकते, इमरजेंसी यूज और डिस्प्ले एक्सेस दैट इज यूज्ड फॉर RFC.
So suppose you have to check the minimum number of transaction code is assigned, then only let's check this one. तो वो मुझे मैनुअली करना होगा या फिर उसका कुछ प्रोसेस होता है, वो मुझे प्लीज बता दीजिए। वो तो मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है। वन थिंग यू कैन डू एनालिसिस इजी होने के लिए, यहाँ पे एक काम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एक्सक्लूड सिंगल वैल्यू स्टार आरटीआर डाल देना, तो आरटीआर का कोई रोल दिखाएगा ही नहीं। ओके ओके ठीक है। देखो सिर्फ एफआई वाला रोल दिखा रहा है। नहीं, आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है अभी। मैंने स्क्रीन शेयर किया है अभी। नहीं अभी नहीं आ रहा है, मे बी लोड हो रहा होगा। आई थिंक तुम्हारा कुछ कनेक्शन इशू है। हाँ मे बी कनेक्शन इशू नहीं, वो क्या है ना, कुछ सिस्टम अपडेट ले रहा है, इस वजह से आई थिंक इधर स्लो हो गया है पूरा। मे बी दैट इज द इशू। नाउ नो मुना, आई कैन नॉट सी योर स्क्रीन। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ और एक बार। ओके can do it, no additional approval is required। ठीक है, डायलॉग यूजर के लिए मैं बोल रही हूँ। हाँ 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 ठीक है, अगर कुछ रोबो आईडी है उसका डिफरेंट है, वो बाद में बोलूंगी मैं, बट अगर रोबो का प्रोसेस पूरा डिफरेंट है एंड फायर फाइटर का भी डिफरेंट है एंड आरएफसी का, मैं डायलॉग का बोल रही हूँ। ठीक है, तो वो यू कैन डायरेक्टली सेटअप, यूजर लॉक अनलॉक आता है इन नॉन प्रोडक्शन, यू कैन डायरेक्टली डू, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। कमिंग टू प्रोडक्शन, यूजर लॉक अनलॉक का आता है इंसिडेंट। ठीक है, इफ द यूजर इज लॉक्ड ड्यू टू 90 days इनएक्टिविटी, तो उसको यू कैन अनलॉक। क्या वो कैसे पता चलेगा? इफ इट इज लॉक ड्यू टू 90-180 एक्टिविटी, एक मंथली कंट्रोल होता है। ठीक है, 90-180 इन द थर्ड वीक ऑफ द मंथ, वेयर वी log the users who has not logged in for the 90 days and we deprovision the user जिन्होंने log in नहीं किया for 180 days। So once you get the unlock incident ticket, यहाँ पे चेक करना अगर locked है और टिकट नंबर चेक करना कौन सा टिकट के थ्रू लॉक हुआ है। ठीक है, अगर 90 days के लिए लॉक होगा तो सिर्फ आईडी लॉक रहेगा, बाकी यूजर ग्रुप वैलिडिटी रोल्स विल बी एज इट इज। तो इसको तुम लॉक कर सकते हो। इफ इट इज लॉक ड्यू टू, उसको तुम अनलॉक करते हो, सॉरी। हाँ, अगर ये आईडी 180 days के लिए डिप्रोविजन हुआ है तो यहाँ पे यूजर ग्रुप आएगा डिप्रोविजन। ठीक है, डिप्रोविजन एक यूजर ग्रुप है, वो आएगा। अगर हाँ ऐसा यूजर ग्रुप फॉर लीवर्स। डिप्रोविजन होता है तो उसका वैलिड 2 भी पास डेट में रहेगा एंड देयर विल बी नो रोल। ठीक है, नो रोल, 0 रोल्स। तो तब जाके यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आस्क देम टू गो टू एक्सेस सेंटर एंड रेज अ न्यू एक्सेस सेंटर रिक्वेस्ट। ठीक है। ठीक है, तो गलती से भी किसी को प्रोडक्शन में रोल असाइन मत कर देना। प्रोडक्शन एक्सेस मस्ट बी डन थ्रू एक्सेस सेंटर। ठीक है, ये लॉक अनलॉक हो गया और नॉन प्रोडक्शन का अनलॉक, नॉन प्रोडक्शन का टिकट तो मैं बोल दी। ठीक है, और ओएसएस में कल एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी हाउ टू प्रोसेस द ओएसएस रिक्वेस्ट। ठीक है, और मैं माधुरी को भी बोलती हूँ, इफ शी, अच्छा हाँ, इफ शी इज अवेलेबल एंड इफ देयर इज एनी रोल चेंज रिक्वेस्ट, शी कैन show you how to analyze the role change request। ठीक है मोना। Okay then, yeah, okay, bye। Okay मोना, bye, thank you so much, thank you, bye।